Good morning, class 9th. Today we'll be learning a new chapter, and the name of the chapter is trigonometrical ratio of standard angles. Now you would notice one thing in this, that there is trigonometric ratio was a previous chapter, and this of standard angle is a new chapter. Okay, so the name is connected with the previous chapter, that was trigonometrical ratio. Okay, now you might be thinking, sir, what is it? So earlier you were using theta, you remember? Any angle, if you were putting a or x or theta, but we won't go with theta now. We would go with a particular standard angles. Okay, there are some standard angles and we'll go according to them. So for example, let's say if this is 90 in triangle POM, this is 90, this is 45. What is this going to be? Think about it. This is also going to be 45. So now we are going to learn all the ratios. Okay, we are going to learn all the ratios using this angle, that is sine 45. Let's see what is sine 45 going to be. Sine 45. But before we go to sine 45, let us see that what kind of a triangle is it forming. If this is 90 and I have given this is 45, this is also going to be 45. So this is a isosceles triangle, isosceles right angle triangle. It means if this is A, this is also A. क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी. तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड ढूंढी. ओके, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर. राइट नाउ पी ओ स्क्वायर आई डोंट नो, बट आई नो दिस. इफ दिस इज ए, this is also A, and if I add both of them, so it's going to be 2a square, and then its square goes on that side and become root. So PO equals to, A has a square, A can come out of this, A can come out of this. So PO equals to root 2a. A is outside. Okay, so if you can notice this, PO कितना हो गया? P से लेके O root 2a. Okay, I hope you're getting this. Now I'll find out sine 45, cos 45, tan 45, and I'll use the same thing. Pakistan भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, this to help me out. Okay, so sine की वैल्यू, आपको sine की डेफिनेशन पता है क्या होती है? क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, अब cos सबका लिख लेता हूँ. cos 45 base upon hypotenuse, tan 45 is equals to perpendicular upon base, right? And cot 45 is equals to base upon perpendicular, right? And then sec 45, अब मैं थीटा नहीं लगा रहा हूँ, आप देखोगे मैं 45 लगा रहा हूँ, equals to hypotenuse over base. Okay, and then cosec 45 equals to hypotenuse over perpendicular. अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जरा. जब 45 आ रहा है तो P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है. अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कितना है? A अपॉन A. सॉरी, हाइपोटेनियस कितना है आपका? रूट 2a. राइट. अच्छा, बेस कितना है हम पे? बेस है हम पे A, हाइपोटेनियस है रूट 2a. ठीक है. अच्छा, ये कितना है? A, परपेंडिकुलर है A, बेस है A. ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर A, बेस है A, इसमें रूट 2a ओवर A, इसमें भी हाइपोटेनियस कितना है? रूट 2a अपॉन A. ठीक है, नाउ आई कैन कैंसिल देम आउट. तो मेरा साइन 45 की वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन रूट 2. साइन 45 की कितनी आई? 1 अपॉन रूट 2. अच्छा, इसकी कितनी आएगी? कॉस 45 की, इसकी भी 1 अपॉन रूट 2. टेन 45 की कितनी आएगी? कुछ बचा ही नहीं, क्या आया? 1. कॉट 45 की कितनी आएगी? ए और ए कैंसिल किया, बचा 1. और सेक 45 की कितनी आएगी? रूट 2. और इसकी कितनी आएगी? इसकी भी ए और ए कैंसिल, तो क्या बचा? रूट 2. तो आपने देखा, जब हम एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं जैसे साइन 45, तो मेरा आंसर हमेशा नंबर्स में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? नंबर्स में आ जाएगा. ठीक है, हमेशा नंबर्स में आंसर आ जाएगा. तो तभी हमने इस चैप्टर का नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ये रेशियो है ऑफ स्टैंडर्ड एंगल.
सो सबसे पहले हमने कौन सा स्टैंडर्ड एंगल लिया, 45। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि जब हम 90 + 45 + ये x करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो मैंने ये ढूंढ लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। फिर मैंने सारे वो निकाल दिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब मुझे इसकी वैल्यू आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये लिखोगे और करोगे भी, ठीक है। दिस आई नीड as a photo, as a picture on WhatsApp. This is one of your homework. You'll do this, okay? I want you guys to do this for me, okay? Okay, let us see another proof. Let's say that ABC triangle is a equilateral triangle. It's a equilateral. What kind of a triangle is it? Equilateral. Okay, if the equilateral triangle, I know all the sides are equal. अगर ये A है, ये भी A है, ये भी A है, and all the angles are equal. angles कैसे equal होती हैं, 60 होता है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि इसमें मैं क्या लगा सकूँ, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। तो जब ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 हो गया, ठीक है। ये इतना एंगल, इतना एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। बना देता हूँ मैं आपका, ये 30 एंगल, ठीक है। उधर वाला भी 30 और पूरा मिला के 60 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वाले में देखें। तो अगर ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा, आप एज्यूम कर सकते हैं A/2, राइट। ये भी A/2, हाफ हाफ हो जाएगा अगर ये पूरा A है तो, है कि नहीं। ओके, लेट्स सी हम पे है क्या। ओके, अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसको लेट्स से इसको उस पूरे लाइन को 2A ले लेता हूँ। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2A होगा, ये पूरी लाइन। तो ये कितना हो जाएगा A, और ये कितना हो जाएगा A, ठीक है। ये पूरी लाइन कितनी है, 2A, 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 ठीक है। थोड़ा इजी बन जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन, बुक वाले ने भी ऐसे दे रखा है, तो तभी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक A है, यहाँ से लेके यहाँ तक A है, ठीक है। आप सबको समझ आया होगा। मैंने क्या कहा, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, एंड इफ व्हेन वी टेक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर 60 60 60, इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस इज 60, and when I draw perpendicular bisector, this becomes 30 and this becomes 90. So I'm going to look in this triangle right now, ABD. okay, in which triangle I'll be looking, ABD. पर मुझे एक चीज़ पता नहीं है, मुझे AD की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं AD की वैल्यू ढूंढूंगा। ओके, सो AD की वैल्यू कैसे आएगी, प्लीज हैव अ लुक इन, सॉरी आई विल राइट इट ओवर हियर, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। AB का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, राइट। तो इसका AB तो पता है आपको कितना है, AB 2A होल स्क्वायर, BD कितना है, A है, और AD नहीं पता आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AD। तो ये A स्क्वायर उधर जाएगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जा, यहाँ AD बचेगा, AD स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3AD। सो AD कितना आ गया आपके पास, √3A। ओके ओके, अब हम देखते हैं साइन 60, कॉस 60, ठीक है, टेन 60, कॉट 60, सेक 60 एंड कॉसेक 60, कॉसेक 60। तो हमने दो स्टैंडर्ड एंगल सीख लिए अब तक। क्या क्या सीखे हमने, पहले तो हमने सीखा 45, ठीक है। मैंने बताया कि जब हम आइसोसेलेस एंगल लेते हैं तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा हमेशा इतनी आएगी। अगर वहाँ पे साइन 45 लिखा है कितनी वैल्यू है, तो आपको लिखना है 1/√2। अगर वहाँ लिखा है कि कॉट 45 की क्या वैल्यू है, आप बोलोगे 1, ठीक है। तो अब हम किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, साइन 60, एंगल 60 लेके। तो हमें कौन से एंगल से देखना है, इस पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि हम इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके, ABD। सो
इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम, ठीक है। पर इसकी सबकी डेफिनेशंस तो सेम रहती है, ठीक है। अगर आप देखो साइन की वैल्यू क्या रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें परपेंडिकुलर क्या ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, √3 ओवर परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो इधर है, इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 2a, ठीक है। ये कितना होता है बेस, बेस यहाँ देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका, ये BD बेस है, तो a अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2a। अच्छा 1060 देखते हैं कितना है, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है √3a/a, ठीक है। कॉट 60 देखते हैं कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर a/√3a, दिख रहा है आपको। अच्छा सेक, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस कितना है देख लो, हाइपोटेनियस ये है 2a ओवर बेस, बेस क्या ये है a, ठीक है। दूसरा कॉसेक, कॉसेक आ जाता है, कॉसेक की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है आपका, हाइपोटेनियस देख लो 2a अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये परपेंडिकुलर है √3a। अगर आप में से बहुत जन को ये नहीं पता परपेंडिकुलर और बेस कैसे लेते हैं, आपको एंगल देखना है, एंगल की जो बिल्कुल सिधाई में होगा 90 डिग्री नहीं, जो इस एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ लिख रहे हैं, जो उसके जो ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर होगा, जो उसको टच कर रहा होगा वो बेस होगा, बाकी जो 90 के ऑपोजिट में वो तो हाइपोटेनियस, वो तो फिक्स्ड रहता है, आप सबको पता है कि नहीं है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू अब आ जाएगी यहाँ पे, देखो साइन 60 कितना होता है, a और a कटा तो √3/2, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, ए कटा ये और ये कट गया a, तो क्या बचा, tan60 कितना होता है √3, ठीक है। ए और a कटा, कॉट 60 कितना होता है 1/√3, ए और a कटा, सेक 60 कितना होता है 2, ओके। कॉसेक 60 कितना होता है, ए और a कटा 2/√3, सिंपल। तो आपको वैल्यूज़ मिल गई, देखा आपने, आपको वैल्यूज़ मिल गई किसकी, जब साइन 60 की, कॉस 60 की, tan60 की। तो अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ओके, मैं ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इसकी वैल्यू ढूंढो, सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉट 45 माइनस साइन 60, इसकी वैल्यू ढूंढनी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी हमने पूरा करा ही नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपके पास, आपने देखा होगा, यहाँ देख रहे होंगे सेक 60 कितना है, सेक 60 देखो 2, तो 2 लिखो और यहाँ स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉट 45 देखो, कॉट 45 कितनी है 1, तो 1 पुट करो, माइनस साइन 60 कितना है √3/2, √3/2 पुट करो। अब इनका एलसीएम ढूंढ दो, एलसीएम ढूंढ के ऐड कर दो, अगर कुछ कुछ चीज़ ऐड नहीं हो रही तो ऐसे छोड़ दो, जैसे यहाँ 4 + 1 5, 5 माइनस √3/2, यही आएगा, ओके। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस, ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज, ओके। अब तो हमने देखा कौन से प्रोस्पेक्टिव से, 60 के। अब हम देखते हैं 30 के, इसी ट्राइंगल में ABD एक और एंगल है, ये 30 डिग्री दिख रहा है आपको, 30 डिग्री। अब हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, अब हम देखेंगे साइन 30 कितना है, कॉस 30 कितना है, tan 30 कितना है, कॉट 30 कितना है, सेक 30 कितना है, या कॉसेक 30 कितना है, सॉरी 30, ओके। आपको पता है साइन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको नहीं पता, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसको ये भी बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। बट सम ऑफ यू माइट टेक दिस पंडित बद्रास पंडित, ओके या, ओके या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट जस्ट गो विद दैट, ओके, ओके। एनी हाउ,
ओके, सो मेरे पास साइन की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, अब इसके अकॉर्डिंग देखना, इसके अकॉर्डिंग ये तो हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, पर परपेंडिकुलर क्या है, जो इसके ऑपोजिट होता है, इसके ऑपोजिट में जो होता है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस है, ठीक है, देखा आपने। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुआ क्योंकि अब मैं इस प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो साइन 30 ढूंढना है मुझे। साइन 30 इतना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है ए अपॉन हाइपोटेनियस 2a, ठीक है। कॉस 30 ढूंढना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके अकॉर्डिंग देखूँ, कॉस 30 के अकॉर्डिंग तो ये बेस है, तो √3a अपॉन हाइपोटेनियस इज 2a। टेन 30 तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अगर आप देखो ये है, और बेस क्या है आपका, ये है √3a, ठीक है। कॉट 30, कॉट 30 क्या होता है आप देख लो, उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस √3a/a। सेक 30 कितना होता है इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है 2a, और बेस कितना है √3a, ठीक है। और कॉसेक कितना होता है आपको पता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज ए, यस। ओके, जब हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए और ए कटा, इसकी 1/2, ये कटा तो इसकी हो जाएगी √3/2, ओके। एंड देन ये और ये कटा तो इसकी हो जाएगी 1/√3, ये और ये कटा, ये हो जाएगी √3, ये और ये कटा, ये हो जाएगी 2/√3, और ये कटा, ये हो जाएगी 2। सो आपको ओके तीन एंगल, तीन स्टैंडर्ड एंगल पता लग गए, क्या क्या आपको 45, ठीक है, आपको 60 और आपको 30, तीन स्टैंडर्ड एंगल पता लग गया और उनकी वैल्यूज़ कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम बस स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू ही ढूंढना सीखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब आप अपनी कॉपी में करें, ये पूरा जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोग ये करें, ठीक है। इवन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ओके। पहले 2 पेज में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। ओके, लेट्स लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को जैसे साइन 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री कितना होगा, टेन 0 डिग्री कितना होगा, ओके। कॉट 0 डिग्री कितना होगा, सेक 0 डिग्री कितना होगा, और कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो अब हम आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आपको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। अगर यहाँ 0 डिग्री बनाना है, आप 0 डिग्री कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है, या यहाँ पे धागा रखा है मैंने, तो आप 0 डिग्री कैसे बनाओगे। आप अगर ये लाइन जा रही है आप बिल्कुल इसे नीचे लेके आ जाओगे, राइट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको नीचे लेके आ गए तो आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक ऐसे एंगल को 0 डिग्री बोलते हैं जिसका कुछ होता ही नहीं है, जो एक सीधी लाइन है 0 डिग्री है वो, ठीक है। 1 डिग्री हल्का सा ऊपर हो जाता है, फिर 2, पर अगर 0 डिग्री बनाना है एक के ऊपर एक लाइन, तो अगर मुझे 0 डिग्री बनाना है इस थीटा को, अगर आप देख रहे हैं इस थीटा को 0 बनाना है तो मुझे यहाँ से कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आ जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं वो करूँगा तो आप एक नोटिस करोगे ये जो लाइन है गायब हो जाएगी, जो y है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म, अगर मैं इसको नीचे लेके आता रहूँगा 0 डिग्री बनाने के लिए, ये y तो खत्म हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और जो ये लाइन है, ये लाइन ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बढ़ती रहेगी, और ये लाइन तो मैं क्या बोलूँगा a और x इक्वल हो जाएंगे, a और x क्या हो जाएंगे इक्वल, तो a x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा लॉजिक पुट करना पड़ेगा, अगर आप बुक में भी देखोगे सेम चीज़ मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है, आपको एज्यूम करना है आप इसको नीचे लेके आ रहे हो क्योंकि आपको 0 डिग्री बनाना है, क्योंकि आप साइन कॉस सब 0 डिग्री के। 0 डिग्री कब होता है, जब ये बहुत छोटा हो जाता है, जब होता ही नहीं है तब इसको नीचे लेके आ जाना है पूरा, तो 0 डिग्री बन जाएगा। इस लाइन को इसके ऊपर बिठा दो, तो y तो ख़त्म हो गया, मतलब y कितना हो गया 0, और जो x है, x अगर मैं इधर लाऊं तो x इतने में हो जाएगा, अगर इधर लाऊं x
पर अगर पूरा इधर लेके आ जाओ तो a और x इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना आप लोग। अब आ जाओ, इनकी वैल्यूज आपको पता है, इसकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसकी होती है हाइपोटेनियस ओवर बेस, और इसकी होती है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ये तो सबको आपको पता लग गया होगा अब तक, ठीक है। अब आ जाओ, अगर यहाँ 0 डिग्री बन जाता है, लेट्स से 0 डिग्री बन गया, ये मैंने नीचे लेके आ गया, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है y, y अपॉन क्या होगा x, ओके सॉरी y अपॉन a, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, इसमें कितना होगा, बेस कितना है आपका, बेस है x अपॉन हाइपोटेनियस a, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y अपॉन x, इसका कितना हो जाएगा x अपॉन y, इसका कितना हो जाएगा a अपॉन x, इसका कितना हो जाएगा a अपॉन y, ठीक है। अब आपको पता है y 0 है, तो जहाँ भी y 0 है यहाँ पुट कर दो, 0 अपॉन a, 0 अपॉन a कितना होता है हमेशा 0, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री कितना बन गया आपका 0 बन गया। अच्छा x अपॉन a, x और a मैंने बताया इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल है तो 1 बचेगा। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, नंबर 1 होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री कितना होता है 1, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, tan कितना होता है देखते हैं यहाँ पे, मैंने बताया था आपको कि y 0 है, ठीक है। अगर y 0 है तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये x पता नहीं y 0 है, और नीचे 0 होता है तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं हम लोग। जब नीचे किसी के भी 0 होता है तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, आप डिवाइड कर ही नहीं सकते 0 से, ओके। अगर आप करना भी चाहोगे 0 को जैसे 2 से डिवाइड करना चाहोगे, 0 2 जा 0, 2 बच रहा, फिर से 2 बच रहा और 20 आ जाएगा, 0 90 जा 0, फिर से 20 बच गया, ऐसे आता रहेगा। फिर ये नॉट डिफाइंड बोलते हैं जब भी नीचे 0 आता है तो, ठीक है। इसमें a अपॉन एक्स, a और x आपको पता है इक्वल है, तो आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो सेक 0 डिग्री भी 1 होता है। a अपॉन वाई, y आपको पता है 0 है, तो a अपॉन 0 आपका कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। जब भी 0 नीचे आएगा तब आपका नॉट डिफाइंड आएगा। सेम चीज़ होगी 90 डिग्री के लिए भी, आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 90 डिग्री पुट करोगे और आपको वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि जब 90 बनाओगे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको यहाँ पे 90 बनाना है। कैसे बनाओगे, जब आप ये ऊपर खींचते रहोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, यहाँ से पकड़ के दोनों धागे, ये भी धागा ये भी धागे, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ का तो 90 बन जाएगा, पर ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यूज़ नहीं पता, प्लीज़ आप पेज पलटिएगा तो आपको 90 की भी वैल्यू पता लग जाएगी। सो गो थ्रू द वैल्यूज़ ऑफ 90 कि 90 का 0 कैसे आया, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक अ बिग वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग यू 90। आप 90 की वैल्यू देख सकते हैं कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप 90 बनाओगे तो आपका x 0 हो जाएगा, फिर x कितना हो जाएगा आपका, जब x 0 हो जाएगा और आपका a और y इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये पुट करोगे तब आप ये आपका काम है कि आपको साइन 90 कॉस 90 टेन 90 अपने आप लिख के देना है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। लेट्स डू सम 1 और 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करूंगा आपके लिए, आपको पूरा होमवर्क समझ आ जाएगा। तो 5 का सेकंड पार्ट कहता है क्या है, इफ x इक्वल्स टू 15 डिग्री, x इक्वल्स टू 15 डिग्री, वेरीफाई दैट 4 sin 2x cos 4x and sin
6x इक्वल्स टू 1, मुझे प्रूव करना है कि ये सब जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1 आएगा। तो x मुझे 15 दे रखा है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। 4 साइन, और यहाँ x की जगह 15 पुट करूँगा तो ये 30 आ जाएगा। साइन हमेशा डिग्री लगता है, यहाँ कॉस में 15 पुट करूँगा तो 60 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 90 आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है मुझे, 1 लेके आना है। अब मैं साइन 30 की वैल्यू ढूंढूंगा कितनी है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू। अगर आपको देखना है साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, और क्या चाहिए आपको देख लेते हैं पहले। कॉस 60, कॉस 60 भी 1/2 है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 इंटू साइन 30 इज 1/2, cos 60 is also 1/2। ओके, एंड देन लेट्स फाइंड साइन 90 कितनी है। ओके, आप अपनी बुक में जाओगे, मैंने 90 का आपको कराया नहीं है, आपके लिए ही छोड़ा है। तो अगर हम साइन 90 देखते हैं तो 1 आ रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो जैसे 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 है। And that's how you solve this type of question. All the questions will be easy for you now, I promise that. Okay, try solving some of the questions that are given for the homework, plus I want you guys to prove this whatever I have written it down. Okay, it's gonna be little bit more homework for you, but that's how you will learn. Okay, thank you so much for looking at this video and being patient. I hope you understood something out of this. Enjoy your day. Have a good day, everyone.